Whenever there is an anomaly in this concept, you suffer from paralysis, you suffer from pain. CNS. Right? Central nervous So system. whenever you have a paralysis, it is either of CNS or PNS. PNS. Right? Yes, sir. ALS comes in which? The combination of CNS and S. MND classification. MND is upper motor neuron, PNS lower motor neuron. And when these two are integrated, it is called what? Huh? ALS. The anomaly of upper motor neuron and lower motor neuron is what? ALS, amyotrophic lateral sclerosis. तो सबसे गंदा थ्योरी क्या है? डेथ इन ALS. बट हम लोगों ने एक ALS का पेशेंट को 8 महीने से मेरे पास से सेवा से बाउट टू डाई बहुत मेरे सब करके हम लोगों ने अभी भी उसको सस्टेन करके रखा है. स्टिल शी इज वॉकिंग. 8 महीना हो गया मेरे पास से. Right? Now pain is classified into acute, chronic. Anything recently happening is acute. More than 6 months, chronic. Clear? That is the pain in the local area. Right? No. Fall injury? Trauma means कहीं चोट लगा क्या? Fall? No fall injury. Right? So now second thing will come what? Any internal problem or what? Pathological. The first investigation what you will refer is what? X-ray. X-ray of the spine. What view? AP lateral. आगे से पीछे और ऊपर से नीचे. यानी साइड व्यू. यानी ऐसे और ऐसे. that is a sagittal Front and and lateral. axial view. बात समझा? कृष्णा और राधा. राधा ये कृष्णा. समझ में आया? You will see the radiculopathy. Now I ascertain the nerve pathway. नर्व पाथवे. हाँ, नर्व पाथवे मतलब क्या होता है? वो नर्व अपना गति से कहाँ जा रही है? राइट? आपको दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ छू के पूछो. यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है. तो डर्माटोम पकड़ लिया, मायोटोम पकड़ लिया, तो डर्माटोम मिल जाएगा. यानी कौन सा नर्व में कंप्रेशन है. Yes, sir. What you see in the MRI is not true because L4 का compression होने से L5B nerve कॉम्प्रोमाइज करेगी. हो जाता है. इसलिए बोला था पहले क्या काम ही के तुम्हें ना पहले तुम काम ही बनना बंद करो. अपने आप को फोकस करो. काम ही के तुम्हें नार प्रिय है, लोभ ही के प्रिय दाम. अगर तुम्हारा दिमाग में ये दो चीज चलेगा तो ये चीज कहाँ से आएगा? तुम्हारे दिमाग में समोसा चलेगा तो और पानी पूरी चलेगा. So the localized issue. So what are the clinical investigation? SLRT, side leg rise, F4 position, sacroiliac dysfunction है नहीं है. Diagnosis क्या है? यहाँ से पेन यहाँ जा रहा है. Now differential diagnosis क्या हो सकता है? Cancer. Extrusion, sequestration. डिस्क में बहुत दिन से बीमारी था बट सडनली फ्लेयर अप हो गया. समझा? कवर हो जाएगा क्या? नहीं. So what do you have to do? You have to correct the lifestyles. What you have to do? You have to correct the myotome. Myotome का मतलब है muscles. Each muscle is connected with one nerve. Right? That is why we give importance to nerve conduction studies. कौन सा nerve? देखिए किसका conduction कितना कम है. इसको क्या बोलता है? Velocity of the nerve.
वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स, यानी उसमें कितना करंट है। अगर लो करंट हो गया तो क्या हो गया, न्यूरोपैथिक हो गया। करंट खत्म हो गया तो क्या बोलता है, एनआर। एनआर। जब एनआर हो गया तो उसको क्या बोलता है, एक्सोगोनल न्यूरोपैथी। क्या बोलता है, एक्सोगोनल सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी। उसमें क्या होता है, पाँव का सेंसेशन खत्म हो जाता है और धीरे धीरे मोटर कम हो जाता है। मोटर का मतलब क्या होता है, सेंसेशन कम हो गया, राइट। तो मसल को ब्रेन के साथ कंडक्शन बंद हो गया। अब मसल पाँव पतला होने लग गया। Not myasthenia. Acts of the primary thing. Once you understand what is the disease, you will know the nerve root. अब उस nerve root के ऊपर वो मसल पकड़ लो, कौन सा मसल है। तो इसमें 3 कैटेगरी। तुम लोगों को लो बैक पेन, साइटिका पेन ज़्यादा आता है ना? यस सर, सब तरह के आते हैं। ये चालू ही खत्म कर लेता है, 5 मिनट लगेगा। घड़ी देख के देखो, 10 मिनट में टॉपिक। अरे तुम बैक पेन करेगा तो रेटिकुलोपैथी खत्म। दोनों एक ही है। कृष्णा राधा है, राधा कृष्णा है। मत पड़ जाना बाकी दुनिया की तरह। प्राइमरी चीज क्या है, इरिटेशन। साइटिका पेन मीन्स nerve root irritation. It comes from the neural formenia. Neural formenia. That is the exciting nerve root. So if the exciting nerve root is impeached, the pain radiates. Now which nerve root is irritated is if which nerve root is irritated is signified by the myotome. मायोटोम। The myotome will say which nerve is impeached. It is called dermatome. Topic over. समझ में आया? बताएगा कौन सा मसल इम्पैक्ट है और डर्माटोम बताएगा हम यहाँ हैं। तुम समझ में आया? यानी तारी भक्ति सदा सत्संग। क्या बोला, अगर शिव जी हमारा माँ बाप है और पार्वती हमारा माँ है, तब भी हम तुमको नहीं समझ सकता है। क्यों? तुमको भक्त को पकड़ना होगा, यानी गुरु का शरण में जाना होगा। गुरु कौन है? मायोटोम। डर्मा। मायोटोम चेला। तुम चेला को पकड़ेगा, गुरु का चेला को पकड़ेगा। यानी तुम हमारा चेला संदीप को पकड़ेगा तो पेन तुमको मिल जाएगा। अब तुम हमको पेन पकड़ने आएगा तो हम बोलेगा ये कौन है, हम तो नहीं जानता है। हाँ, तुम लोग का कभी पेन खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कौन मसला, राइट। नर्व मिल गया, राइट। क्या मिला तुमको? मसल एंड नर्व। नाउ टेक वन MRI to know the exact position of the disc. अगर डिस्क एक्सट्रूडेड ज़्यादा है और कैनल को ज़्यादा दबा दिया, रेफर द पेशेंट फॉर सर्जरी। बट इन 70% of the cases you can recover. This type of patients you can easily recover. तुमको क्या हाथ में मिला? मसल एंड नर्व। नाउ एक तरफ हो गया डिस्क, करेक्ट, एक तरफ हो गया नर्व, एक तरफ हो गया मसल। बाइफर्केशन मिल गया, डिस्क नर्व। सही है, समझ में आया? एक बात, साइटिका पेन का 3 बाप कौन? डिस्क नर्व डिस्क नर्व को दबाया, नर्व मसल को बर्बाद किया। समझ में आ गया बात? अब क्या करना है, जो मसल में प्रॉब्लम है उसका टेंडर पॉइंट्स ले लो। टेंडर पॉइंट होता है अफेक्टेड मसल। अब नर्व है, राइट। नर्व रूट कहाँ से मिलेगा? मैंने बताया था ना सुबह, ये क्या है, स्पाइन का ये। तो आइडेंटिफाई L4। L4 का क्या आइडेंटिफिकेशन है? PCIS ना, PCIS से सीधा ले लो, यूं सीधी लाइन, ये रहा PCIS, डिम्पल ऑफ द स्पाइन। ये डिम्पल मिला, आजकल तो कम हो गया हमारा डिम्पल।
ये रहा L4 कहाँ है L4 L5 S1 L4 L3 L2 L1 नीचे एक लेवल डाउन ये है इसका चुम्मा ये वर्टिब्रा डिस्क का पैथोलॉजी चुम्मा बल्ज प्रोट्रूशन पैरासेप्टल प्रोट्रूशन कन्वर्जन एक्सट्रूशन सेक्यूस्ट्रेशन समझ में आया और जब एक्सट्रूडेड हो गया ऐसे आ गया तो उसको क्या बोलता है कोडल माइग्रेशन यानी फ्लूइड निकल के नीचे नीचे की टूटा तरफ नहीं है अंदर fluid धंस रहा है। नीचे की तरफ आ गया ऐसे टूट के नीचे आ गया सो बी केयरफुल नाउ इफ द पेशेंट डज नॉट गो फॉर सर्जरी टेक केयर ऑफ द डेफिसिट डेसिकेशन नहीं होता है इसको कोडल माइग्रेशन बोलता है यानी लिक्विड बाहर आके गेप कटा नहीं है उसमें कोडल माइग्रेशन हो जाता है कोडल माइग्रेशन होने का मतलब है इनकॉन्टिनेंस ऑफ बावल एंड ब्लडर क्योंकि कोडल इकुना को कंप्रेस कर दिया जैसे कोडल इकुना के ऊपर एक्सेस मैकेनिकल प्रेशर पड़ा तो क्या होगा डेफिसिट आ जाएगा इनकॉन्टिनेंस ऑफ बावल ब्लडर एंड पैरालिसिस समझ में आ गया तो ये मिल गया तुमको लोकेशन नीचे वाला बात समझ में आया कि नहीं आया किसको नहीं आया उसको नीडल मार मार के सिखा देता है जगह राधा नाम को ठीक है डिस्क नर्व मसल मसल्स का डर्माटोम देख लिया मायोटोम देख लिया कौन सा मसल दर्द कर रहा है यानी ये एरिया दर्द कर रहा है तो इधर इधर दबा के देख लिया फिर उसको पेन से मार्क कर लिया राइट फिर उस एरिया का टेंडर पॉइंट्स निकाल लिया समझा और आसपास का टेंडर पॉइंट्स भी निकाल दिया उस टेंडर पॉइंट्स को नीडल कर दिया करेक्ट समझ में आया अब नर्व ये डिस्क ये हो गया तुम्हारा इसका दो हिस्सा हम लोग कमर का हिस्सा देखो ऐसे है ना एक राइट एक लेफ्ट एक कृष्णा एक राधा राधा बात समझा ऐसे देखो ये ऐसे है ना राइट तो ये रहा डिम्पल ऑफ द वर्टिब्रा स्पाइन हाँ इसे एक लंबा लकीर खींच तो क्या मिलेगा L4 सर ये S1 मिलेगा इलियक क्रस्ट से L4 आएगा इससे चलो थोड़ा सा ऊपर। चलो ये इलियक क्रस्ट ले लो कुछ भी ले लो हाँ L4 उसके लेवल चलो इलियक क्रस्ट ले लो इलियक क्रस्ट से क्या मिलेगा L4 ना इलियक क्रस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेगा ये हार्ट बोन साइड गोल कहाँ से लेगा ये ना ये मोटा जहां पतला होता है वहां से ले लो यानी ये रहा L4 ये देखो राइट जैसे तुमको मिलेगा वहां होल मिलेगा आइडेंटिफाई द L4 एनाटॉमिकली सो व्हाट इज द पंचलाइन identify the L4 anatomically correct huh study then take one line like this on L4 clear So this line is on spinous process or between the spinous process? the gap तुम वर्टिब्रा को छुओ यहाँ तुमको गैप मिलेगा ये देखो हाँ उसके बीच में गैप है कि नहीं हाँ उस गैप में ये लकड़ी मार दो L4 जो नर्व एफेक्टेड है हम L4 L5 को नर्व एफेक्टेड मान लिया राइट
वहाँ में एक नीडल, यहाँ में एक नीडल, यहाँ में एक नीडल, यहाँ में एक नीडल। मार दिया? सीपी गाइडेड वाला। हाँ वही प्रोसीजर है। एक लेबर डाउन, एक लेबर आउट। अगर L4 और L5 अफेक्टेड है तो एक यहाँ लगे खींचो, L3 L4, एक लगे डाउन, L5 S1। चढ़ी मतलब ओके, एक ऊपर एक नीचे। हम बोला ना पिंडदान करना है, बेटा को 3 पीढ़ी का पिंडदान होता। नीडल यूज व्हाट? स्पाइन पिन। यहाँ कौन सा यूज करेगा? स्पाइन। मसल में ब्रेन मसल्स। दूसरा पेन कौन सा है? स्पाइन में स्पाइन, राइट? मसल में मसल में ब्रेन क्यों मिलाएगा? क्योंकि हमको एंडोर्फिन, एनकाफेलिन्स कहाँ से चाहिए? हाँ, तो इसको क्या बोलता है? सेंसरी मोटर। हाँ, यानी तुम सेंसेशन भेजेगा, हमको कुछ चाहिए, बच्चा रोएगा तो ही माँ दूध पिलाएगा, तो ये रोएगा, ऊपर से दूध। हाँ, तो फिर समझ में आया? ठीक है, तो पॉइंट्स मिल गया आपको। दूसरा है जो टाइटनेस है, एक मिनट, जो मसल का टाइटनेस है वो टाइटनेस को कम कर रिलीज करो। नाउ नर्व रिलीज हो गया, टाइटनेस रिलीज करो और ये करो। तो टाइटनेस रिलीज करने का तरीका क्या है? हैमस्ट्रिंग टाइटनेस होता है ना, तो 1 2 1 दूनी 2 1 2 2 के 1 L11, उसका एक अंगली बाद 2, दूसरा नीडल, उसका 2 अंगली बाद 3। 1 + 2 = 3। बात समझा? 1 ले लिया, इसका एक अंगली बाद क्या हुआ? एक अंगली आया, राइट? इसमें 2 जोड़ दिया, 2 अंगली जोड़ दिया, 1 2, तो तीसरा अंगली का स्पेस मिला, तो क्या हुआ? 1 + 2 3। 1 + 2 1। नर्सरी क्लास में भी तो साले बुतिया साली।